Hello to everyone. Today we are starting with our topic complex numbers. In our previous video, we have discussed about the imaginary numbers. Then after the use of imaginary numbers, we are getting towards complex number. So what is complex number? The number which is written in the form of a plus iota b, right? Where a and b are the reals. A and B are the real numbers, A and B belonging to the real numbers, and Z is equal to A plus iota B. इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं. लाइक हमारे पास है Z is equals to 4 plus 3 iota, right? This is a complex number. If I am writing Z is equals to 4 only, it is also a complex number because we can write it as 4 plus 0 iota, right? Z is equals to 0 plus 3 iota means only 3 iota is there, so we can write it as 0 plus 3 iota. It is also a complex number. Suppose we are writing 0 plus 0 iota. This is also a complex number because 0 and 0 are the अगेन रियल नंबर्स. तो इस टाइप से कोई से भी यहाँ पर रियल नंबर्स हो सकते हैं, बेशक यहाँ पर फ्रैक्शन नंबर्स भी हों 1/2 3/2 i. इन दिस वे वी कैन एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट? तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, a एंड b बोथ आर द रियल नंबर्स, बट a इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ z. Real part of z. A is called real part of the complex number and b is called imaginary part of the complex number. Imaginary part of z. In short, we can write it as real part of z and we can write it as imaginary part of z. B is called imaginary part of z and A is called real part of z. Why? Because it is with the iota. B जो है वो आइटा के साथ है. अगर B आइटा के साथ है तो उसको क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर. क्योंकि एनी नंबर which is a real and it is multiplying with iota, then its result will be an imaginary number. कोई भी नंबर अगर imaginary number से multiply होगा तो वो कैसा हो जाएगा? Imaginary हो जाएगा, right? तो B is the imaginary part of Z and A is called real part of Z because it it have no iota. इसके पास iota नहीं है. अब आइटा नहीं है तो इसका मतलब क्या है? आइटा से फ्री है. आइटा से फ्री है तो फिर ये कैसा नंबर है? रियल नंबर है. तो इस तरीके से अगर सपोज मैं आपसे पूछता हूं, इन दिस एग्जांपल सपोज वी हैव 1/2 plus 3/2 iota. Here this is example. In this 1/2, what is 1/2? That is a real part of Z, and what is 3/2? That is imaginary part of Z. So in short way, RE of Z indicates the real part of Z, that is 1/2, and IM of Z indicates the imaginary part of Z, that is 3/2. अब इसके बाद हम एक चीज और कंसर्न है हमारे साथ. अगर सपोज किसी केस में a की वैल्यू 0 हो गई, मान लो आपने a की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दी, तो z कितना हो जाएगा आपका? आइटा b. इन दिस if you are substituting a is equal to 0, we get z is equal to iota b. तो ये कैसा नंबर हो गया? इट इज ए प्योरली इमेजिनरी नंबर. और अगर हमने b को 0 पुट कर दिया, देखिए अगर आप इसको 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास z क्या हो जाएगा आपका? a. दिस इज कॉल्ड प्योरली रियल number. I am writing purely real number. So in this way, complex numbers are subdivided into two categories. Either they are purely imaginary or purely real. It means चाहे वो real numbers हो, चाहे वो purely imaginary numbers हो, वो सारे के सारे कौन सी कैटेगरी में फॉल होंगे? They are falling in the category of complex numbers, right? तो all the real numbers are complex numbers, है ना? All the imaginary numbers are कॉम्प्लेक्स नंबर्स. एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स को वैसे कैसे लिखते हैं हम? a प्लस आइटा b की फॉर्म में लिखते हैं, वेयर a एंड b कैसे होते हैं? हमारे रियल नंबर्स होते हैं. ठीक है, तो आपको ये चीज क्लियर हो गई कि व्हाट आर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स. बट इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए वी आर मेकिंग ए समंदर मीन सी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है, तो मैं सी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करता हूं. देखिए हम आगे बढ़ते हैं. What is complex number? If z is a plus iota b, तो if a is 0, मान लेते हैं a आपका 0 हो गया, तो z कितना हो गया आपका? iota ऑफ b. एंड अगर b 0 हो गया तो फिर z कितना हो गया आपका? a हो गया.
ठीक है, तो ये किस टाइप के नंबर्स हैं आपके, प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर्स। देखिए इसको आप ध्यान से समझेंगे, प्योरली इमेजिनरी नंबर एंड प्योरली रियल नंबर्स। अब प्योरली रियल का मतलब बेसिकली क्या हो गया, ये रियल नंबर्स ही है ना, ये रियल नंबर्स ही हैं। अब ये रियल नंबर्स अगर हैं तो रियल नंबर्स को फर्दर हम टू कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। आप इसके बारे में जानते हैं, आइदर दे आर रैशनल और इरेशनल। 10th क्लास में हम पढ़ते हैं सेकेंडरी लेवल में, दे आर रियल और सॉरी दे आर इरेशनल और रैशनल नंबर्स, राइट। तो रैशनल और इरेशनल, राइट, रैशनल नंबर्स एंड, तो मैं ऊपर इरेशनल राइट कर देता हूं, एंड देयर इज रैशनल नंबर्स, राइट। अगर इरेशनल नंबर है तो कोई बात नहीं, बट अगर रैशनल नंबर्स हैं तो फिर से इनको हम टू कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑल द रैशनल नंबर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, आई जिनको डेसिमल फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। और कुछ ऐसे होते हैं, मतलब मैं इसको कह सकता हूं ये टर्मिनेटिंग नंबर्स है, राइट, टर्मिनेटिंग नंबर्स। और कुछ ऐसे होते हैं रैशनल नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में, कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में होते हैं, लाइक 1.333 इन दिस वे, इट नेवर स्टॉप्स। और अगर मैं 1.3 राइट कर देता हूं तो ये स्टॉप हो गया, तो कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर है ना। अब कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो डेसिमल फॉर्म में होते हैं, टर्मिनेटिंग फॉर्म में होते हैं, और कुछ कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में होते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें टर्मिनेटिंग की, तो नॉन टर्मिनेटिंग तो आपको पता ही है, इसको हम बार की फॉर्म में राइट करते हैं। उसके बाद अगर हम डेसिमल फॉर्म की बात करें, दैट इज अ टर्मिनेटिंग नंबर्स, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग नंबर्स को फर्दर हम टू कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। दीज आर, या तो ऐसा हो सकता है कि वो इंटीग्रल नंबर्स है ना, या आइदर दे आर इंटीजर्स और नॉन इंटीग्रल डेसिमल फॉर्म, है ना। नॉन इंटीग्रल डेसिमल फॉर्म में है, मतलब उनका फ्रैक्शनल पार्ट भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी अवेलेबल है। या तो इस टाइप के नंबर्स होंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, मतलब मिक्स्ड फॉर्म में आप कह सकते हैं, मिक्स्ड फॉर्म में नंबर्स होंगे। तो अब अगर इंटीजर्स की बात हम करते हैं, तो इंटीजर्स के अंदर फिर से क्या होंगे, इंटीजर्स को फर्दर हम टू कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। इंटीजर्स को कौन कौन सी कैटेगरी में कर सकते हैं, या तो वो पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, है ना, और या फिर कैसे हैं, नेगेटिव इंटीजर्स है ना। नेगेटिव इंटीजर्स आप सभी को पता है। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है, इनके अंदर भैया जीरो भी हो सकता है, 1 2 3 4 अदर नंबर्स भी हो सकता है। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूं, ये होल नंबर्स हैं। कौन से हैं, होल नंबर्स, ठीक है, ये होल नंबर्स है। अब अगर ये होल नंबर्स है तो फर्दर मैं इनको टू कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकता हूं। वो कौन कौन से हैं, तो आप इसको फर्दर टू कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, आइदर जीरो, या तो क्या होगा, जीरो ओनली, और या फिर क्या होगा, नेचुरल नंबर्स, है ना। नेचुरल कौन से होते हैं, जो 1 2 3 4 ये सारे जो नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब चलो जीरो तो ठीक है, पर अगर नेचुरल नंबर हो गए तो फिर से उसको टू कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं भाई, या तो वो क्या होंगे, हमारे ऑड नंबर होंगे, है ना, और या फिर कैसे होंगे, इवन नंबर होंगे। ऑड नंबर कौन से होते हैं, जो टू से डिविजिबल नहीं होते। तो हमने देखा इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स में इसको क्लासिफाई कर दिया हमने। अब देखिए ऑड नंबर्स के अंदर भी कुछ ऐसे ऑड नंबर्स होते हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होते, वन को छोड़ दीजिए, है ना। और बाकी जो ऑड नंबर्स होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, लाइक 3 डिवाइड नहीं होता, 11 डिवाइड नहीं होता, तो वो कौन से हैं, वो प्राइम नंबर्स हैं। और जो डिवाइड हो जाते हैं ऑड नंबर्स, वो कैसे हैं, वो सारे कंपोजिट नंबर्स हैं। तो बेसिकली इनको फर्दर हम टू कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, बल्कि वन को हम अलग से कर देंगे ऑड नंबर, क्योंकि ये इट इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, तो इसको हम अलग से स्टडी करते हैं। और उसके बाद फिर आपके या तो प्राइम में स्प्लिट हो जाएंगे या फिर नॉन प्राइम में स्प्लिट हो जाएंगे। तो नॉन प्राइम का मतलब क्या हो गया, बेसिकली ये कैसे हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं, ठीक है, राइट, कंपोजिट नंबर्स। तो इसका मतलब ऑड नंबर्स को फर्दर हम टू कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, या तो प्राइम या फिर नॉन प्राइम। वन एक अलग केस हो गया, क्योंकि ये दीज आर नाइदर प्राइम एंड नॉन नॉर
कंपोजिट नंबर, राइट। उसके बाद इवन नंबर्स को भी फर्दर हम टू कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, क्योंकि टू तो एक ऐसा नंबर होता है जो कि फर्स्ट प्राइम नंबर होता है। टू इज ए फर्स्ट प्राइम नंबर, तो इसको तो मैं अलग से कर सकता हूं, बट जो एक्स्ट्रा मेरे पास बच गया वो क्या है, वो फिर से कैसे हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं। इसका मतलब इवन को भी हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, आइदर टू और कंपोजिट। तो व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस डिस्कशन, वी आर गेटिंग दिस कि सबसे पहले देखिए, ऑल रैशनल नंबर्स आर प्योरली रियल्स, all irrational numbers are purely reals, all terminating numbers which are the rationals are also reals, and all non-terminating forms are also complex number। तो अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, इस डायग्राम में नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये स्टेटमेंट हर जगह ट्रू होगी, लाइक ऑल ऑड नंबर्स आर प्योरली रियल्स, ऑल even numbers are complex numbers, all whole numbers are complex numbers, all real numbers are complex numbers, all purely imaginary are complex number। तो इसका मतलब क्या हो गया भैया, सब कुछ क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मतलब ये जितने भी नंबर्स आज तक आपने पढ़े, बचपन से लेके 18 टीन एज तक, ठीक है, जो भी नंबर हमने पढ़े तो वो सारे के सारे क्या है, बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज हमें पता चला कि वो सारे कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो बेसिकली दीज नंबर्स आर कॉल्ड सी ऑफ नंबर्स, मतलब इसके अंदर सारे के सारे टाइप के जो नंबर्स हैं वो आपने स्टडी किए, तो ये सारे के सारे जो सेट्स हैं वो एक दूसरे के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, लाइक नेचुरल नंबर्स का सेट क्या है, होल नंबर्स का सबसेट है। होल नंबर्स का सबसेट क्या, सेट क्या है, इंटीजर्स का सबसेट है। इंटीजर्स क्या है, जो टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स, उनका सबसेट है। रैशनल नंबर्स क्या है, प्योरली रियल नंबर्स का सबसेट है। प्योरली रियल नंबर्स क्या है, इसका सबसेट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सबसे बड़े कौन से हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। और सबसे बड़े जो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इनको क्या बोलते हैं, पेरेंटल नंबर्स बोलते हैं, क्योंकि सारे के सारे इन्हीं की संतान है ना, सब इसी से जनरेट हुए हैं, तो इसलिए क्या बोलते हैं, पेरेंटल नंबर्स बोलते हैं। तो बहुत ही इजी सी बात है कि कॉम्प्लेक्स रियल नंबर से भी बड़े कुछ और हैं, तो रियल नंबर से भी बड़े कुछ और हैं, वो कौन से हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो आज के बाद हमें ध्यान रहे कि मेन जो हमारे नंबर्स हैं वो कौन से हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इन कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है और डिवीजन कैसे होता है, मतलब ऑल द ऑपरेशंस which we have read in our previous classes, वो सारे के सारे ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स नंबर पर भी टेस्ट करेंगे। अब कॉम्प्लेक्स नंबर पर टेस्ट किस तरीके से करेंगे, देखिए। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, suppose z1 is equals to a plus iota b and z2 is the another complex number c plus iota d। अगर आप z1 में z2 को ऐड करेंगे तो a plus iota b plus c plus iota d becomes a plus c plus iota b plus d। मीन्स a में c को ऐड करना है, रियल पार्ट जो आपका ऐड होगा वो रियल में ही होगा, ठीक है, और आइटा वाला पार्ट जो होगा वो आइटा वाले में ऐड होगा। तो a प्लस सी प्लस आइटा b प्लस डी, तो a प्लस सी एंड आइटा b प्लस आइटा डी, आइटा कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, b प्लस डी। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो हमारा नंबर है, देखिए a प्लस सी एक रियल नंबर होगा, इसको मैं a डैश से लिख देता हूँ, b प्लस डी भी एक रियल नंबर होगा, इसको मैं b डैश से राइट कर देता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं टू कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करता हूं तो उसका रिजल्ट भी कैसा आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन इज सेटिस्फाइड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन इज सेटिस्फाइड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एंड सेकंड इज सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन आर द सेम। लाइक अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो a प्लस आइटा b में से आपने c प्लस आइटा d को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इन सेम वे a में से आप c को माइनस करेंगे, आइटा b माइनस d करेंगे आप। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, a डैश प्लस आइटा b डैश, मतलब अगेन इसका फॉर्मेट क्या आ रहा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट आ रहा है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है।
इसके बाद अगर हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन की, देखिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो Z1 इज A प्लस आइटा B, Z2 is C plus iota D, Z1 into Z2, A plus iota B into C plus iota D, इसको मल्टीप्लाई करो AC, आइटा BC, आइटा AD, आइटा स्क्वायर BD, तो हो जाएगा AC आइटा कॉमन BC प्लस AD माइनस BD, तो AC माइनस BD, ये देखिए रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, इसको अलग कर दो, और जो आइटा वाले हैं वो अलग कर दो। देखिए मेन चीज जो ध्यान रखनी है कॉम्प्लेक्स नंबर में वो यही चीज है कि जब आप सॉल्यूशन कर रहे हैं किसी भी क्वेश्चन में, तो लास्ट में जो आंसर देना है आपको वो a प्लस आइटा बी की फॉर्म में देना है, दैट इज कॉल्ड सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसलिए जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन करेंगे तो लास्ट में जो आंसर आपको देना है वो हमेशा a प्लस आइटा बी फॉर्मेट में देना है। तो आप देख सकते हैं कि जब आपके पास ये रियल होगा और ये इमेजिनरी होगा आइटा के साथ है, तो अगेन इट इज अ फॉर्मेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इट मस्ट बी सी डैश प्लस आइटा डी डैश। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो सिंपल हम देख सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन इज आल्सो वैलिड ऑन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड आल्सो व्हेन वी आर टेकिंग द डिवीजन। ठीक है, अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करें तो बेसिकली डिवीजन नहीं होता, वो डिवीजन एक टाइप का रैशनलाइजेशन होता है। ठीक है, अगर सपोज मैं डिवाइड करना चाहता हूं, सपोज मेरे पास ये Z1 है और ये Z2 है, मैंने क्या किया A प्लस आइटा डी अपॉन C प्लस आइटा डी। अब देखिए डिवाइड नहीं करना, हमने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे A प्लस आइटा डी C प्लस आइटा डी डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय C माइनस आइटा डी। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो A प्लस आइटा B को C माइनस आइटा डी के साथ करना है, और डिनोमिनेटर में आप फॉर्मूला यूज कर लीजिए, A प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर डी स्क्वायर, आइटा स्क्वायर बिकम्स -1, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए सी माइनस आइटा ए डी प्लस आइटा बी सी प्लस माइनस आइटा स्क्वायर बी डी। ठीक है, तो आइटा स्क्वायर क्या हो गया, -1, इन दोनों को साथ ले लीजिए तो ए सी प्लस बी डी माइनस आइटा ए डी माइनस बी सी डिवाइडिंग बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और देखिए लास्ट में जब मैं इसको करूंगा तो ए सी प्लस बी डी के नीचे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिख देता हूं, माइनस आइटा ए डी माइनस बी सी के नीचे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिख देता हूं। देखिए ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी हो गया, तो इसको भी सी डैश प्लस आइटा डी डैश की फॉर्म में लिखा जा सकता है, या सी डैश माइनस आइटा डी डैश की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हमने क्या देखा कि अगर मैं टू कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करता हूं तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, दैट इज रैशनलाइजेशन। तो डिवीजन नहीं करना, हमने क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना है। तो जब भी नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, चेंज द साइन इन फ्रंट ऑफ आइटा एंड रैशनलाइजिंग इट। जिस तरीके से आप इरेशनल नंबर को सॉल्व करते हैं, अगर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ जाए तो क्या करते हैं हम, जो हमारे पास लाइक 3 प्लस रूट टू है तो आप क्या करते हैं 3 माइनस रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। सेम उसी तरीके से हम इसके अंदर भी आइटा के आगे वाला जो नंबर है, आइटा के आगे जो साइन है उसको चेंज कर देंगे, चेंज करके फिर रैशनलाइज कर देंगे, रैशनलाइज करके फिर सिंपल ऊपर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, नीचे फॉर्मूला लग जाएगा आपका, और उसके बाद इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये भी हमारे पास ए प्लस आइटा बी फॉर्मेट आएगा। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम जितने भी हमारे पास ऑपरेशंस है, लाइक एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, इन सभी के अंडर मतलब क्लोजर लॉ इज सेटिस्फाइड अंडर दीज ऑल ऑपरेशंस ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर पर हम कोई से भी ऑपरेशन यूज करें इन चारों में से, वो 4 के 4 ऑपरेशंस जो है क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करते हैं, राइट। तो एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। देखिए जब हम रैशनल नंबर्स की बात भी करते हैं तब भी यही कहते हैं कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, बिकॉज दे इट बिकम्स अनडिफाइंड। तो सेम थिंग यहाँ पर है कि सी प्लस आइटा डी में सी एंड डी बोथ आर नॉट इक्वल टू जीरो, देन we can divide these two complex numbers, otherwise division is again not possible if zero lies in the denominator, right?
इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कुछ टर्म्स होती हैं विच आर रिलेटेड विद द कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर? देखिए व्हाट इज कॉन्जुगेट, सपोज हमारे पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इफ z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज x प्लस आइटा y, या a प्लस आइटा भी, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो अगर मैं लेता हूं z कॉन्जुगेट, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बार? बार मींस कॉन्जुगेट, यू हैव टू से कॉन्जुगेट ऑफ z और z कॉन्जुगेट, ठीक है। तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू x माइनस आइटा वाई। तो करना कुछ नहीं है, जो आइटा के आगे वाला साइन है, प्लस है तो आपने माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड आफ्टर finding out the conjugate of the complex number, you have to see, we have to check when z is multiplying with z conjugate, what will happen? ठीक है, फर्स्ट तो हम ये चेक करेंगे कि अगर हम z को z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। बट उससे पहले मैं आपको एक टर्म और स्पेसिफाई कर दूं। सेकंड इज कॉन्जुगेट, मैंने आपको क्लियर कर दिया व्हाट इज कॉन्जुगेट। आफ्टर दैट मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। What is modulus of complex number? Same. If z is x plus iota y, then z modulus is x square plus y square under. This is the modulus of the complex number, or you can say it is the length of the complex numbers. Modulus or length of कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं, लेंथ भी कह सकते हैं और मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो द करेक्ट वर्ड फॉर दिस z मॉडुलस, ठीक है। तो z मॉडुलस रिप्रेजेंट द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए ये हमने क्लियर कर दिया और ये भी मैंने आपको बता दिया। अब एक काम करते हैं, एक एक्सरसाइज करते हैं, z को z कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं व्हाट विल हैपन। अगर हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो x प्लस आइटा वाई को x माइनस आइटा वाई के साथ ऑपरेट करने पर मेरे पास आएगा x स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। आइटा स्क्वायर बिकम्स नेगेटिव, इट बिकम्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। और देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट इज जेड मॉडुलस। तो अगर आप जेड मॉडुलस का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं यहां पर लिख सकता हूं z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जेड मॉडुलस स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है, ध्यान रखेंगे आप कि जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या होगा? दैट इज मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हम क्वेश्चंस के अंदर भी यूज करेंगे। और जब ये रिजल्ट यूज होता है तो उस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जेड मॉडुलस स्क्वायर, ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। अब हम एक और एक्टिविटी करते हैं। अगर सपोज मैंने आपके साथ एक और एक्टिविटी की, देखिए ये मैंने आपको दो डेफिनेशंस दिए। अगर मैं z में z कॉन्जुगेट ऐड करूं व्हाट विल हैपन? x प्लस आइटा y में x माइनस आइटा y ऐड कर दें तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा, है ना। तो बेसिकली व्हाट इज x? x इज रियल पार्ट ऑफ z। इट मींस रियल पार्ट ऑफ z को मैं लिख सकता हूं z प्लस z कॉन्जुगेट अपॉन 2। एंड थर्ड इज, अगर मैं z में से z कॉन्जुगेट माइनस कर दूं तो x प्लस आइटा y माइनस x माइनस आइटा y, तो x प्लस आइटा y माइनस x प्लस आइटा y, दैट बिकम्स 2x 2y आइटा, 2y iota. So what is the value of y? That is z minus z conjugate upon 2 iota. तो basically y हमारा क्या है? That is imaginary part of z, z minus z conjugate upon 2 iota. This is our third part. तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, सेकेंड प्रॉपर्टी ये है। तो आपको ये थ्री प्रॉपर्टीज लर्न करनी है कि z into z conjugate is z modulus square. Second is whenever you add the conjugate of complex number into the complex number, then z plus z conjugate becomes this, and real part of z is z plus z conjugate dividing by 2. और अगर मैं z में से z conjugate को subtract करता हूं तो what will happen? y is equal to this, where y is the imaginary part of z. So imaginary part of z is z minus z conjugate dividing by
टू आयोटा। और एक बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी और मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं, वो कौन सी है? अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट लें तो वापस रिजल्ट क्या होता है? जेड होता है। सेट थ्योरी में भी किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वापस वही होता है। उसी टाइप से अगर z के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लें, बड़ी सिंपल सी बात है, आप इसको देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। सपोज मेरे पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 + 3 आइटा, मैंने इसका कॉन्जुगेट ले लिया 4 - 3 आइटा, फिर से इसका कॉन्जुगेट ले लिया 4 + 3 आइटा, वापस क्या आ गया? z आ गया। तो इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो वापस एज इट इज आ गया। इट मींस z कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट बिकम्स z। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्जुगेट्स। और भी प्रॉपर्टीज हैं कॉन्जुगेट की। फिलहाल हमारी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, कभी कभी इनको 2 मार्कर्स में वैसे ही पूछ लिया जाता है कि शो दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज z - z कॉन्जुगेट डिवाइडिंग बाय 2 आइटा, है ना। कहीं पर लिख दिया रियल पार्ट ऑफ z इज z + z कॉन्जुगेट अपॉन 2, कहीं आपसे पूछ दिया z × z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। अब इसके साथ लिंक करके मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर दूं कि अगर सपोज इसी कॉन्सेप्ट को मैं इस तरीके से राइट कर दूं, मतलब मैं z को तो इस तरफ शिफ्ट कर रहा हूं 1/z, राइट, और इधर मैंने कर दिया z कॉन्जुगेट अपॉन z मॉडुलस स्क्वायर। इसी से मैंने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इधर ले गया, इस वाली टर्म को इधर ले आया। तो 1/z का बेसिक मतलब होता है आपका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। 1/z is called multiplicative inverse of the complex number. This is called multiplicative inverse of कॉम्प्लेक्स नंबर। बाद में हम सीधे क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। आप 1/z यानी कि z को 1/z से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या होगा आपका? 1 होगा। जैसे 4 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा। तो 1/4 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4। उसी तरीके से 1/z इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 1/z। यू कैन से z इनवर्स, दैट इज z कॉन्जुगेट डिवाइडिंग बाय z मॉडुलस स्क्वायर। ठीक है, z कॉन्जुगेट डिवाइडिंग बाय z मॉडुलस स्क्वायर। तो ये आपको एज ए आंसर मतलब एज ए रिजल्ट लर्न करना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आपसे पूछा जाता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। या तो उसको आप प्रॉपर मेथड से करिए, है ना, वो थोड़ा लेंदी हो जाता है। और अगर मैं एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट करना है उसको, तो आप ये टेक्निक ध्यान रखेंगे कि आप z का पहले ऊपर कॉन्जुगेट लिखिए, नीचे उसका मॉडुलस का स्क्वायर कर दीजिए, तो जो वैल्यू आपको मिलेगी वो क्या होगा? हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने ये 4 थिंग्स की। सबसे पहले व्हाट इज कॉन्जुगेट, सेकंड इज रिलेशन ऑफ द कॉन्जुगेट विद द मॉडुलस, व्हाट इज मॉडुलस, एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। और इनके बाद नेक्स्ट जो हमारा है, सपोज z इज x प्लस आइटा y, z कॉन्जुगेट इज x माइनस आइटा y, ये हमने देख लिया। अगर हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, डिफरेंट है, और उस पूरे का आप कॉन्जुगेट लेते हैं तो दैट इज z कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। मतलब इंडिविजुअल कॉन्जुगेट लेकर उनको ऐड किया जाए, या फिर दोनों को ऐड करके फिर कॉन्जुगेट लिया जाए, रिजल्ट सेम रहता है। ऐसे ही इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन इट इज आल्सो वैलिड। z1 - z2 इज इक्वल्स टू z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट। z1 upon z2 whole conjugate is also equals to z1 conjugate upon z2 conjugate. z1 into z2 conjugate becomes z1 conjugate into z2 conjugate. ठीक है, तो all the properties of conjugates are this, right? और इससे पहले भी मैंने आपको conjugate के बारे में बता दिया है कुछ properties, and after that to understand all these things, first of all we are taking an example again. If z is equal to 3 - 4i, राइट, मैंने आपसे बोला व्हाट इज द कॉन्जुगेट, तो z कॉन्जुगेट विल बी 3 + 4 आइटा। सिंपल, आपने आइटा के आगे वाला साइन चेंज करना है, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट, राइट, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरी बात, अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज द मॉडुलस, तो मॉडुलस होता है आपका x² + y² अंडर रूट, मींस x इज 3 and y is -4, that is 9 + 16 अंडर रूट 25 अंडर रूट, दैट इज 5। इसका मतलब z मॉडुलस कितना हो गया आपका? 5 हो गया।
ठीक है, दिस इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ये पहली बात हो गई, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, थर्ड थिंग, अगर हम z को, सॉरी, थर्ड रिजल्ट इज एडिटिव इनवर्स। अगर कहीं आपसे पूछता है व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ z, दैट इज माइनस जेड। इसका मतलब z का एडिटिव इनवर्स मतलब माइनस जेड, तो आपने 3 माइनस 4 आइटा को नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वी गेट दिस। तो दिस इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब अगर आप इसमें इसको ऐड करेंगे तो रिजल्ट आपका क्या होगा, जीरो के इक्वल आएगा। सो इट इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड आफ्टर दैट फोर्थ इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दैट इज 1/z। 1/z का मतलब आपने 1/3 माइनस 4 आइटा कर दिया, तो 3 प्लस 4 आइटा से मल्टीप्लाई, 3 प्लस 4 आइटा से डिवाइड, that is 3 square minus 4 iota square, that is 3 plus 4 iota, 9 plus 16, that becomes 25, and 3 plus 4 iota। ठीक है, तो 3 प्लस 4 आइटा डिवाइडिंग बाय 25, यानी कि हमने क्या किया, जब आप रैशनलाइज करेंगे तो इसके आगे वाला साइन चेंज कर देंगे, आइटा के आगे वाला। तो 3 प्लस 4 आइटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, ऊपर आपका 3 प्लस 4 आइटा हो गया, नीचे हमने फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ए माइनस बी ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइटा स्क्वायर इज -1, तो इट बिकम्स 25। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई, वैसे अगर हम चाहते तो बाय शॉर्टकट, अगर हमने z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो आप इसका कॉन्जुगेट लिख दीजिए पहले, एंड डिवाइडिंग बाय 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 प्लस 4 अपॉन 25। ये शॉर्ट है, दिस इज अ शॉर्ट टेक्निक। ठीक है, शॉर्ट टेक्निक टू फाइंड आउट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो हमने चार चीजें डिस्कस की आपसे। वन इज conjugate of complex number, how to find the conjugate of complex number, next is modulus of the complex number, third is additive inverse, and fourth is multiplicative inverse, right? तो ये हमारा बेसिक पोर्शन था to understand about the complex numbers, and after that we will give you some questions, और उन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा आपसे, और कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स शेयर करेंगे आपसे, ताकि आप अपनी जो एक्सरसाइजेज हैं बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उनको ठीक से कर सकें। उसके बाद कार्टेशियन कॉम्प्लेक्स नंबर अंडरस्टैंड करने के बाद हम आएंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स पर। ठीक है, तो फिलहाल तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके पास आएंगे हम विद सम एग्जांपल्स एंड द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। थैंक यू।